So, we are here with another wonderful episode of our podcast. Now, why am I saying this episode to be wonderful? Because although it was with a very close friend of mine, it was like having a normal conversation. But at the same time, it did shift something inside me. It did help me fight my demons I was struggling with for a month. And the exact aim of Avsar is this. We are trying to build one of the largest human capability center so that every youth, every young student who is stuck, who is fighting their own demons can battle through, right? I always say this very personally that it is okay to be anxious. It is a sign of growth. It is a sign that you are doing something that is taking you beyond what you are right now. And this conversation with CA Payal Ladha, a very close friend, was very defining for me because it opened a lot of avenues. It opened a lot of, how can I say it, pores so that I can explore, I can move beyond the point where I was stuck. So I hope you find your own values in this conversation and take it light. It is a very friendly conversation between two friends, and let's roll in. Okay. So let's start with you. How are you? If in one line I would ask to comprehend your existence, what that would be. I am existing. That's the line because it really matters to me what I'm doing. मेरा existence, how I'm creating an impact. तो अभी recently I'm very good because I'm able to touch more people. Hence I'm here also. तो I can say I'm very good, aiming to thrive and grow 1% better every day. And currently I'm very comfortable because you're making me feel very comfortable. So, Thank you. What do you do? What is your normal day look like? I have always been a teacher all my life. मैं बहुत छोटी थी, 8th में थी, तब से मैं पढ़ा रही हूँ। पहले फाइनेंशियल रीजंस के कारण मैं घर पे प्राइवेट ट्यूशंस लेती थी। मैं 8th में थी तो मैं 5th के बच्चों को पढ़ाती थी और फिर जैसे-जैसे मैं बड़ी होते गई वैसे-वैसे मैं थोड़े बड़े बच्चों को पढ़ाने लग गई और अब ऑलमोस्ट सारे ही मेरी हाइट से तो ऊपर ही जाते हैं। लेकिन दैट इज़ व्हाट आई डू। आई टीच। आई नो नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम टीचिंग बिकॉज़ दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई हैव डन। Okay. And what is your normal day look like? Okay, yeah, you were Schedule. asking. So, up until 2 months ago, my normal day would look like I would wake up, I would come to class, I would take my batch, which might be 7 a.m. some days, 9 a.m. some days, 12 p.m. some days. And I would just take my batches, work on material, meet certain kids जिनको जो हेल्प की ज़रूरत होती है और ऑर्डिनरी वे में अपना पूरा दिन खत्म करके I would go home, eat my food and sleep. Sometimes I would watch a series here and there. I tried to incorporate a few things, but वो मुझसे हो नहीं पा रहा था. So that was my normal day. I worked around 12 to 14 hours a day and that's it. Nothing else. और अब 2 महीने से what my day would look like is I would wake up, take my batches, that part would remain the same. 1.5 hour of my day is allocated to exercise now. Strength training at least 3 times a week. So जो 3 मेजर एक्सरसाइजेस होते हैं अपने मसल को ट्रेन करने के लिए आई ट्राई टू फाइंड आउट टाइम. किसी दिन 45 मिनट्स होता है तो वो, किसी दिन 1.5 घंटा होता है तो पूरा 1.5 घंटा, जैसा मेरा टाइम मुझे परमिट करता है. देन आई कम बैक. इफ कोई मीटिंग्स पेंडिंग होते हैं तो मैं वो उसके बाद ही स्केड्यूल करके करती हूँ. देन आई गो बैक, आई प्ले फॉर 1 आवर. अब वो कोई भी एक तरीके का स्पोर्ट हो सकता है. अभी तो पिकल बहुत चलता है तो कभी पिकल. आई एम ऑल्सो लर्निंग वन स्पोर्ट, तो उसके लिए मैं 1 घंटा निकालती हूँ. देन व्हेन आई गो बैक होम तो पूरे दिन की थकान के बाद आई अगेन फ्रेशन अप एवरीथिंग. देन आई कंप्लीट माई हैबिट ट्रैकर कि मुझे जो दिन की 15-16 चीजें करनी थी, जिसमें 7 आवर्स ऑफ स्लीप आ गया, 3 लीटर्स ऑफ वाटर आ गया, प्रोटीन इंटेक आ गया, विटामिन आ गया, मेरा एक्सरसाइज हुआ कि नहीं,
और मुझे दिन में कोई एक चीज किसी की मदद करनी है वो मैंने किया कि नहीं, ऐसे सारे ट्रैकर्स आई विल शो। एक ट्रैकर है मेरे पास में, उससे मैं वो ट्रैक करती हूँ. देन आई राइट माई ग्रेटिट्यूड जर्नल. देन आई रीड 10 pages for the day, and then I sleep after planning my next day. तो अभी काफी सारी चीजें उसमें धीरे धीरे ऐड हो रही है. You have always been a teacher all your life, Hmm. right? Professionally, qualification wise, maybe, matlab, you are a chartered accountant. Yes. You are an ACCA Yes. qualified Yes. person, right? And you come from a strong commerce background, True. right? Yet you chose to be a teacher. Or how did you still decide to be a teacher? इसमें मुझे बहुत कुछ बोलना है, तो मैं कुछ भूलना चाहूँ इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि मेरे को ये 2-3 पार्ट में डिवाइड करना है आंसर. फर्स्ट कि आपने कितना फेस किया, मैंने कितना फेस किया. सेकंड कि ये नोशन अबाउट कि आपको डिग्री मिल गई है तो आपको क्या करना चाहिए उसके साथ. तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये वेरी ट्रूथफुल आंसर मैं इसका दूंगी कि जितना ये स्टीरियोटाइप एक आदमी फेस करता है ना, उतना एक लड़की नहीं फेस करती है. क्योंकि आप लोगों से एक जितना भी बोल लो, अभी करेंटली वॉट एवर फेज वी आर इन एट सोसाइटी लेवल इज यू हैव टू अर्न. आई कैन अर्न, आई हैव अ चॉइस. True. बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा होता है जहां पर उनके लिए वो एक मजबूरी भी होती है. टू सम एक्सटेंट मैंने भी ऐसा फाइनेंशियल स्टेटस देखा है जहां पे मेरे लिए अर्न करना वाज ऑलवेज प्रेफरेबल, बट मैं किस सोर्स से अर्न कर रही हूँ वाज हार्डली क्वेश्चन, बिकॉज फॉर मी इट वाज ऑलवेज अ चॉइस. तो प्रॉब्लम क्या होता है विथ टीचिंग एज अ प्रोफेशन, एक्सेप्शंस हैं, बट टीचिंग एज अ प्रोफेशन इज फाइनेंशियली लेस रिवॉर्डिंग. True. तो एक लड़के को ये इतना स्टीरियोटाइप इसलिए फेस करना पड़ता है क्योंकि उसके पास चॉइस था ज्यादा अर्न करने का, बट उसको फिर पैशन कैसे फॉलो करना है ना, उसको तो पहले घर पे फाइनेंस में कंट्रीब्यूट करना है. सो दैट इज व्हाई आई थिंक यू फेस दैट स्टीरियोटाइप अ लॉट. फॉर मी a lot of people have not personally commented upon this, but yes, जैसे आपने बोला, students would definitely ask why not corporates, why not jobs. So coming to second part of my answer, I hate corporate jobs. +1. For me, earning will always be secondary, also because there will always be a primary bread earner in the family, but I have the privilege to choose hobby and passion over finance. I'm very privileged to be able to do that. So I've never wanted to work in corporates, and I have always wanted to do something that makes my life more fulfilling. At the end of the day, I want to be able to still do the work that I've done all day. My energy and my soul should not be drained from sitting 9 to 5 at a desk and working for someone else. So when you are teaching, you are sort of working for yourself and for the kids, and that energy keeps on refueling every day. And you also get to be a part of the gratitude cycle. When you see that kid that you have taught become someone else and earn for their family, it all sorts of starts making a sense to you. And एक belonging, एक feeling of matter आप करते हो, वो आपको फील होने लगता है. तो इसके लिए फाइनेंस जॉब्स से बेटर मुझे हमेशा ये ऐसा लगा. और हाँ, लोग तो बोलेंगे कि आप सीए कर रहे हो, उसके बाद में आपने क्यों जॉब नहीं किया, बिकॉज इतना वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में सीए आपको सिखाता है कि इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन इन एनीथिंग दैट यू डू. Like, you can be a teacher, but when you are a CA plus a teacher, you are a better teacher. You are a better teacher. You can be a businessman, but when you are a CA plus a businessman, you are a better businessman. It teaches you costing, it teaches you law, it teaches you the fundamentals, it teaches you the discipline. What comes from learning throughout this degree will always scale up the business. So I have a brother who's worked in corporates and then came back and joined the family business. And a lot of people in the family would taunt him. Now that's where stereotype comes into picture, that इतना साल पढ़ा लिखा करना तो आखिर में फिर पिताजी का धंधा ही था, तो फिर क्यों पढ़ा इतना. क्योंकि वो उसको स्केल कर पा रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे स्केल कर पा रहा है, इसलिए अपनी डिग्री के वैल्यूज को वो यूज कर ही रहा है. तो इफ आई एम अ सीए टुडे, आई एम एबल टू टीच those same values to the kids that I teach, and then when they become CA, they are able to choose whether they want to do a corporate job or start their business of their own.
Perfect. इसमें यार थोड़ा I would also like to add Hmm. a male POV, Hmm. right? Because आज भी we face that, even though the place where we work or the Hmm. institute, yeah, the job we have done, finance was never such an issue, Hmm. right? We earned well, Hmm. but still the society holds a stereotype Hmm. कि यार टीचर है इन द एंड तो वो स्कूल वाला मास्टर जी ही है, बराबर. राइट? एंड आई एम very open to say that I still face that today, Okay. right? आज भी when someone asks me, लिफ्ट में मिलते हैं सोसाइटी में कि पढ़ाने का ही है, बस इतनी देर ही पढ़ाना होता है, and I can see in their eyes that they think I am not earning much, Okay. right? वो एक है, but still I'm here, still I'm undeterred by those things is simple because as you said, नींद आएगी रात को, right? और वही चाहिए, right? कि I am doing what I love to do, I am earning good, right? I don't care about the society. And this is what we would like to take to all the listeners and the audience, that Indian education system is not a limiting factor कि तुमने अगर ये किया है तो आप यही कर सकते हो, right? I recently met a physiotherapist by qualification, but a superb businesswoman, right? She is running 3 businesses at once. Okay. बोले यार मैंने डॉक्टर बनी, मैं पेरेंट्स की इच्छा थी, आई डिड दैट, बट आई डिड नॉट एंजॉय डूइंग दैट. Yeah, true. Now What's your inner calling? I had a choice कि यार मैंने कर ली डिग्री, अब मेरे को इसी के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, या कर ली डिग्री, इट वाज जस्ट अ चैप्टर इन माय ऑटोबायोग्राफी, नाउ आई विल राइट अनदर वन, राइट? सो आपकी डिग्री आपको लिमिट नहीं कर सकती बिकॉज यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने बहुत रिसेंटली इस बारे में बात भी किया था, एंड आई वांट टू एम्फसाइज अगेन, बीइंग अ पर्सन विथ 2 degrees, आई वांट टू से दिस, having a degree is fantastic, it's very reassuring, but job security is sometimes a trap. I told this and I'll repeat this again. If you have job security, sometimes you are worth a person who can become an employer, but you're just ended up creating a skill set in yourself that suits your employer. So आपका potential curb भी हो जाता है कितनी बार उसके कारण, क्योंकि आप वो leap of faith ले ही नहीं पाते हो. जिसके पास वो डिग्री नहीं है उसको वो करना ही पड़ेगा. और रही बात सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो वो तो कितना भी कोई MUA मेकअप आर्टिस्ट बन जाए सोसाइटी तो उसको पार्लर वाली ही बोलेगी. तो भाई आज के टाइम पे टीचर्स जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं वो सोसाइटी ने, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सोसाइटी गिव्स इट टू देम, एंड देयर आर सम पीपल हु विल ऑलवेज try to undervalue you, but that's a reflection of them, not you. That's what I always believe. You said 2 महीने में your timetable has changed, right? What happened? What was that trigger window, right? Exactly that window जहाँ पे सुबह उठे and you found कि वो दुनिया तो कुछ और ही है. मैं एकदम एग्जैक्ट क्या मेरे लिए चेंज हुआ ना, अगर बताऊं तो देयर इज ओनली वन वर्ड, एंड दैट वर्ड इज कंजम्पशन. माय इनपुट, एवरी सोर्स ऑफ इनपुट, आपकी सब सोर्स इनपुट्स होते हैं. आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, आप किससे मिलके बात कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप अपनी बॉडी को और माइंड को क्या फीड कर रहे हो. एंड मैंने वन फाइनल डे, एंड आई डिड नॉट वेट फॉर 1st January न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं किया था मैंने, क्योंकि ये कुछ फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ही हुआ मेरे साथ के बस हुआ ना यार अभी कितना. सो आई न्यू ऑल द राइट थिंग्स. मेरे को तुम पूछोगे 20 सबसे अच्छी चीजें क्या करनी चाहिए, मैं भी लिख दूं यार एक किताब, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा था. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल what they struggle with is the execution. Correct. The ideas are never the problem, right? But an idea in your mind is worth 0. And even 10% execution is better than 100% worth of an idea. So one fine day, I just started executing imperfectly, poorly. I just woke up one morning, I took a piece of paper and I decided I will fix everything like I fix my batch and my schedule. The most serious thing I have ever been is about my classroom, right? I know when I'm a teacher, I have to enter, I have to prepare, I have to deliver. And if I'm able to do that there, then this is my body. And I only get one such body. I have to be serious about it. Plus, everyone in my profession, I could, you know, when you see someone and you think, bhai, ye 10 saal baad mera bhi yahi hone wala hai. So everyone around me facing those health issues, because see,
टीचिंग इज अ गॉड लेवल ऑनरेबल जॉब, बट इट डिमांड्स अ लॉट फ्रॉम यू. अभी मैं वर्क लाइफ बैलेंस का तो बात ही नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग गुड, आप वर्क लाइफ बैलेंस को तो एक बार फिर भी कोने में ही रख दो. आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकली मेंटली ड्रेनिंग जॉब. बिकॉज आपको हर दिन में 100 से ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, आप इतने लोगों से मिल रहे हो. नर्वस सिस्टम सिमुलेशन की बात आप समझो, उसमें किसी बच्चे ने कुछ कमेंट कर दिया आपके ऊपर, या किसी के साथ कुछ पर्सनली रॉन्ग हो गया, आप सबका पैकेज अपने साथ घर पे लेके जा रहे हो, है ना. वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एंड ऑफ द डे पे ऐसी हालत हो जाती थी कि मुझे बोलने तक की इच्छा नहीं करती थी घर पे, क्योंकि आप पूरे दिन बोल चुके हो, आपका कोटा खत्म है और ऐसा सब. एंड आई लिटरली फेल्ट दैट एवरी अदर पर्सन वाज आस्किंग मी, क्या हुआ, बीमार है क्या तू, क्या हुआ, तू बीमार है क्या, ऑन अ नॉर्मल डे. I know I was one of them. आप एकदम नॉर्मल डे पे मुझे देख के बोल रहे हो कि मैं बीमार हूं, मैं डल हूं. आई जस्ट फेल्ट नो एनर्जी इन माई बॉडी, सो आई हैड टू चेंज समथिंग. सो आई चेंज एवरीथिंग. I made a schedule, and just like I planned my timetables, I wrote down on a piece of paper Monday to Saturday what I will have for breakfast, what I will have for lunch, what I will have for dinner. It took me some research. एक संडे को लेकर के मैंने सारा पता किया किसमें कितना प्रोटीन होता है, भाई कितना खाना चाहिए, वेजिटेरियन डाइट में क्या अलाउड होता है. और इतना इजी था वो, क्योंकि आप वही चीजें खाते हो, बस आपको फिक्स पता होना चाहिए. और आप जब बिजी होते हो काम में, यू डू नॉट गेट द टाइम और द एनर्जी टू डिसाइड इट एवरी डे. So I just decided Monday to Saturday what I'm going to wear, what I'm going to eat. And I made those courses very simple for myself. I don't drain even a minute in deciding any such thing. It's always pre-planned. ठीक है, तो आधा प्रेशर तो आपका वहां खत्म हो गया. Just a second. हाँ, You plan what you'll wear. You it's plan fixed. what I you have 7 dresses only, Monday to Saturday. A shirt matched with a pant hanging there on my wardrobe. I do not buy until those are finished. So Okay. वही कॉन्सेप्ट है, आपको क्या पहनना है, आपको क्या खाना है, वो फिक्स है. वो चीजों में दिमाग ही नहीं लगाना है, ग्रोथ करने में दिमाग लगाना है. आप 1.5 घंटा अपन सोचते हैं कि एक्सरसाइज के लिए आई डोंट हैव टाइम. आई हैव टोल्ड माई सेल्फ दिस फॉर द पास्ट 3 years 5 years, वेन एवर सिंस. सी, जब यंग होते हैं ना, तब तो मेटाबॉलिज्म इतना बढ़िया काम कर रहा होता है, कुछ भी खा लिया सो लिया, यू डोंट हैव दैट इश्यूज. फिर जब एनर्जी लॉस फील होने लगता है कि भाई आज गंदा खाया और आज दिन में पढ़ाने की एनर्जी कम है, 2:30 बजे वाले बैच में मुझे नींद आ रही है, मैं बच्चों में एनर्जी कहां से लाऊं, तब रियलाइज होता है कि अरे ढंग का खाना खाएंगे तो एनर्जी कितनी लंबी रहेगी. प्रोटीन ही नहीं खाया तो कहां से एनर्जी आएगी, आएगी नहीं बॉडी के अंदर में वो एनर्जी. मैग्नीशियम की कमी है तो नींद नहीं आएगी, नींद पूरी नहीं होगी, आप रिकवर नहीं करोगे. और इन सबके पीछे लगता है कितनी सारी चीजें करनी पड़ेगी, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना. वी प्ले द विक्टिम कार्ड. I'm just telling you, it's easy for me to say I don't have the time. Everyone has the time for everything. अगर हम अपना सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे तो 1 से 1.5 घंटा हम इंस्टाग्राम कर रहे हैं इजीली, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. और ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो काम में धुत है. छोटे बच्चों को तो आप उठा के देख लो, 13-14 घंटे का उनका स्क्रीन टाइम है. सो जब हमारे पास स्क्रीन टाइम, एंटरटेनमेंट, फैमिली, फ्रेंड्स, गॉसिप, सब चीजों के लिए टाइम है, तो बस इन्हीं चीजों को ढंग तरीके से स्केड्यूल करने के लिए भी टाइम हो सकता है. Now, being a person who loves to work, I have always loved to work. ठीक है, क्योंकि मैं अपने पसंद का काम कर रही हूँ तो मुझे काम करने में मजा आता है. Correct. तो मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ ओवर वर्किंग को, पर मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत ग्लोरीफाई करती थी. तो मुझे यही लगता था मैं तो काम ही कर रही हूँ ना, मैं गलत कहाँ ही कर रही हूँ. सो मेरे पास तो टाइम है ही नहीं अपनी बॉडी के लिए. हाउ कैन आई? एंड देन कट टू टुडे व्हेन यू आर गिविंग 1.5 hour for your body in a day. With same amount of with same amount of time, you will find your productivity jump off this roof. आपको लगेगा यार ये काम जो करने में मुझे 4 से 6 घंटे लग रहे थे, ये तो मेरे 1.5-2 घंटे में हो जा रहे हैं. एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताती हूँ कि मुझे मेरे सीए फाइनल के दिनों में ना शादी में जाना था. मेरे फ्रेंड की बहन की शादी थी. अब एग्जाम तो आ जाएगा लेकिन शादी तो नहीं आएगी बार बार, तो मुझे जाना था. एंड आई हैड अ विंडो ऑफ सम 15 days टू प्रिपेयर. मैं रात को सिर्फ 3 घंटे सोती थी और मैं पूरे दिन प्रिपेयर करती थी, और मैं इतनी बढ़िया पढ़ाई करके गई क्योंकि मुझे शादी में जाना था. वापस वहां से आने के बाद मेरी पढ़ाई नहीं हुई जितनी मेरी वहां जाने के लिए हुई. ठीक है ना. सो इन माई डे व्हेन आई नो आई हैव सर्टेन आवर्स डेडिकेटेड टुवर्ड्स माई ग्रोथ, बॉडी एंड माइंड, तो मेरे पास तो कम समय है, मुझे कम समय में पूरा काम करना है. तो आदमी का यही होता है, जितना समय होता है ना उसमें वो फैल जाता है. तो अगर आप अपनी बॉडी के लिए रिलीजियसली वैसे ही टाइम निकालने लग गए जैसे आप खाना खाने और ब्रश करने के लिए करते हो, एकदम 4 सिंपल नॉन नेगोशिएबल रूल्स है. 3 liters ऑफ वाटर, घर का प्लेन ऐसा खाना जिसमें आपको प्रोटीन 1.5x मिल जाए आपके बॉडी वेट का, 1 घंटे का कोई भी एक्सरसाइज, इट कैन बी प्लेन वॉकिंग, है ना, 7-8 हजार कदम ही,
और 7 घंटे 6 घंटे की नींद मिनिमम। अगर आप सिर्फ ये 4 चीजें कर रहे हो, आपके पास आपका काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जो बाकी का समय है आप उसमें फोड़ दोगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें क्लैरिटी नहीं होती कितनी बार हमें क्या करना है, इसके लिए आई हैव एडेड दैट रूटीन ऑफ राइटिंग एवरीथिंग डाउन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि उसके बाद ही आपको क्लैरिटी आती है उसके ऊपर। So we can say that, or I can say that कि एक वो एनालॉजी होती है ना कि अगर मुझे एक प्रोजेक्ट 3 महीने में खत्म करने को दिया हो, वो होगा 15 दिन में ही, राइट? तो टाइम आपके पास है। वही प्रोजेक्ट मुझे 15 दिन पहले मिला होता तो मैं रोता कि यार इसके लिए तो 3 महीने चाहिए, right? So you always can accommodate everything in a very small time frame. It is just that you are inefficient. और मे बी योर माइंड, योर बॉडी और दिस पर्टिकुलर थिंग इज लाइक वाटर। आप जितने बड़े बर्तन में डालोगे वो उतने बड़े बर्तन में फैल जाएगा। ऐसी वाली चीज है। और आपको हमेशा खुद को बोलना ही होता है, बस मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और ये बहुत इजी तरीका होता है इस चीज से एस्केप करने का, क्योंकि ग्रोथ विल ऑलवेज कम इन डिस्कम्फर्ट। और डिस्कम्फर्ट में इंसान की सबसे पहली चीज यही होती है कि वो गिव अप करने की सोचता है। जो उसको एंड्योर कर लिया ना, बस वही इस साइकिल से बाहर आ पाता है, जो मुझे खुद को करने में बहुत टाइम लग जाता है। और इसमें एक प्रॉब्लम और है इसका ना, आज के टाइम पे एक वर्ड है जो मैं बोलती हूँ, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए सिंपल वर्ड्स में समझा देती हूँ व्हाट इट इज, कि आपको कुछ चीजें करके इमीडिएट डोपामिन मिलता है। मैंने अभी नेटफ्लिक्स पे मस्त एक टॉप 10 वाली मूवी देख ली, मेरे को तुरंत मजा आ गया, ठीक है ना। मैंने चॉकलेट खाई, मुझे तुरंत टेस्ट मिल गया। ये जो चीजें होती है ना, पता नहीं भगवान ने ऐसे क्यों बनाया है, इनके बेनिफिट्स हमको मिलते हैं थोड़ी देर से। आज मैंने कोई स्किल डेवलप किया, या आज मैंने बॉडी बनानी शुरू करी, आज मैंने अच्छा खाना शुरू किया, तो मुझे इसका असर इतना बाद में जाके मिलता है कि मेरे में पेशेंस ही नहीं है वो देखने का। मुझे चाहिए फटफट। रील वाली दुनिया में, T20 वाली दुनिया में आप टेस्ट मैच चलाओगे, कहां से चलेगा? सो पीपल डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड पेशेंस टू वेट। पीपल में मैं भी, आई एम द पीपल। तो मेरे में वो ग्रेटिफिकेशन ही नहीं है। और वही क्या हो गया ना कि आपको बस जिद करनी है खुद के साथ कि मेरे को 10-15 दिन तो ये करके ही देखना है। यार ये लोग बोल रहे हैं इतना होता है तो होता ही होएगा कुछ तो भी, है ना। चल के देख ले, करके देख लेते हैं इसके साथ में। जब लोगों ने रेकमेंड किया ये मूवी बहुत अच्छी है, तब मैंने देख ली। तो लोग कह रहे हैं एक्सरसाइज कर लो, तो करके देख लो। करके देखो आप 1 महीना, आपकी एफिशिएंसी में फर्क नहीं आया 1 महीने बाद, तो यू नो वेयर टू फाइंड मी। अरे भाई ये सही चीज है, ये करनी होगी। एक इंडियन घरों में मेंटालिटी क्या है, आप पतले हो आपको एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। मतलब उनके लिए जिम या फिर कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज इज इक्वल टू मोटापा घटाना। मैं तुमको ये कहना चाहती हूँ, एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी के लिए करता है उससे भी ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स वो आपके माइंड को देता है। आई थिंक इफ 2 to 3 months ago you came up to me and talked to me about this podcast, my first reaction would be, Jayant yaar, I'm very busy. Not because I couldn't take out time for this, but because I will try to avoid doing anything new, anything that requires extra effort, anything that talks something out of my comfort zone, है ना। मुझे कोई बोलेगा स्टेज पे जाके आपको कुछ बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, मैं ये नहीं देखूंगी कि मुझे बोलना आता है कि नहीं, आई एम सो गुड एट इट और नॉट। इफ इट इज अफेक्टिंग माई नर्वस सिस्टम, माई फर्स्ट रिएक्शन इज भागो वो चीज से, डोंट डू इट। सो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, आपको क्लैरिटी मिलती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदलता है, और इतना बदलता है कि भाई बहुत बदलता है। मैंने तो होते हुए देखा है, इसके लिए मैं ये चाह रही हूँ कि ये सबको पता चले दैट a few things done together in a combination, it will not make you maybe the best person in the world, but it will make you the best version of yourself. You will feel like you have superpowers even though you don't, and it will make you kind also. It will make you, because आप reality बहुत easily accept करना start कर दोगे, है ना। आपकी energy बहुत positive हो जाएगी उस चीज में। 1.5 महीने में 2 महीने में जो you भी, said अब तो आई एम नॉट कीपिंग काउंट। your life flipped. हाँ मतलब Yeah. काउंट क्यों रखना है, अब तो वो Yes. रेगुलर अब हो, ये that is your लाइफस्टाइल है। normal, ट्रू ट्रू ट्रू, that is your new normal, Yeah. right? And since around 14th January you started posting content on Instagram, yes, right? let's not call that content for my peace sake, but yes, I posted videos. You started posting what you're feeling, Yeah, basically, yeah, if true. I can say that. Mm. And उसमें you received a lot of positivity. You could see that something good is going out there. Mm. But I want to understand कि
why did you start sharing this online? Maybe we do that in our batches. कि मैंने ये आज ये किया, या I felt this, and we have been doing this since we were teaching, right? So abhi, what made you go on Instagram? Now where is this question coming from is I am personally struggling to take that journey of going online and sharing just simply what I feel. If I want to do it, I'll do it on LinkedIn through words, right? That is my choice of weapon, but I am facing that, क्या बोल सकते हैं, hindrance. And why did you choose to go there? ओके, मुझे ऐसा लगता है जब आप पॉइंट ऑफ व्यू या अपना लेंस थोड़ा सा भी चेंज करते हैं ना, तो आप किसी चीज को किस नजरिए से देखते हैं वो इतना चेंज हो जाता है कि आपके एक्शंस भी उस चीज को अलाइन करने लग जाते हैं. तो मुझे इनिशियली तो नहीं पता था कि मैं क्यों गई. बस मेरा एक दिन जब मैं ट्रेन में बैठी थी, थॉट उमड़ा और मैंने फर्स्ट टाइम फोन निकाला, आई शॉट इट एंड आई पोस्टेड इट. और मेरे को ये पता चल गया था कि आई एम गोइंग टू कीप डूइंग इट एवर सिंस. few years ago we realized that social media is the place जहाँ से आप अपने products की marketing कर सकते हो. Now everyone is using it to market themselves and the products and everything. तो तब से ना एक गलत इमेज सोशल मीडिया के दिमाग में पड़ के बैठी थी और ऐसा लगता था कि कोई भी चीज वहां जाके बोली गई विल साउंड बोस्टफुल. आई डोंट वांट टू बी बोस्टफुल. मैं बैच में मेरे बच्चों से कह रही हूँ ना, वो मेरे बच्चे हैं, वो मुझे जज नहीं करेंगे, वो सुनेंगे, वो समझेंगे, उनके फायदे के लिए मैं कोई चीज बता रही हूँ. उनके बीच में फेमस नहीं होना चाहती हूँ वाला आइडिया, सोसाइटी क्या बोलेगी, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, फैमिली मेंबर्स क्या बोलेंगे, वो कुछ भी नहीं आता. अब सोशल मीडिया इतना ओपन प्लेटफॉर्म है ना कि वहां आप किसी की टीचर नहीं. तो ये ब्लॉकेज क्या आता है, मैं कौन हूं किसी को कुछ सिखाने वाला. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कभी ये रहा ही नहीं कि मुझे किसी को कुछ सिखाना है. मैं हमेशा से रही हूँ टीचर. और टीचर में कैसा होता है ना कि जितना आप सिखाते हो, ये आप फेलो टीचर हो, आप समझोगे जितना आप सिखाते हो उससे 10x आप खुद सीखते हो. True. तो अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट वहां पे डिस्कस करना है तो उसके पहले तो मेरी रिसर्च जाएगी ना 10x उसके ऊपर. और अगर मैंने किसी को कह दिया कि बेटा 3 लीटर पानी पीना जरूरी है और फिर मैं नहीं पी रही हूँ तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा. आई वॉन्टेड दैट सोशल कमिटमेंट इन माई लाइफ. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाई आई डिड वॉज आई एम फीलिंग दैट चेंज इनसाइड मी, जो बहुत ही छोटी चीजें करने से आया. It's going to make me realize my full potential in the times to come. I can promise you, Jayant, here, right now, sitting here, because I just know it in my heart, it will happen. When I know this for sure, तो एटलीस्ट मुझे पता है कि ये पाथ है एक जिसपे चलना चाहिए. और हमें लगता है ये तो कितनी बेसिक चीज है ना, सबको पता होगी. अरे तो मुझे भी तो पता थी, मैं क्यों नहीं कर पाई? आई वाज स्ट्रगलिंग विद एग्जीक्यूशन. करेक्ट. और अब मैं कर पा रही हूं तो मेरे को कुछ तो भी किसी से शेयर करना चाहिए ना, जिससे किसी का भी 1% भला हो. मुझे नहीं कमाना सोशल मीडिया से, मुझे नहीं बनना यहाँ पे इन्फ्लुएंजा, नहीं करना मुझे कोलैब नहीं करना, प्रोडक्ट नहीं बेचना किसी को. मैंने क्लैरिफाई कर दिया वो चीज, एक रील बना के पिन कर दी ताकि मेरे को वो गिल्ट ही ना आए. कोई मुझे बोलेगा ना कि हम तुमसे ज्ञान क्यों सुने, मत सुनो. मैंने किसके लिए किया? जिसको मेरी हेल्प की जरूरत है. क्योंकि मुझे भी तो किसी की हेल्प की जरूरत थी ना. आई चेंज्ड माय होल एल्गोरिथम एंड आई चेंज्ड माय होल पर्सपेक्टिव इन 2 months. व्हाट इज इट गोइंग टू क्रिएट इन ईयर्स? जस्ट इमेजिन द कंपाउंडिंग इफेक्ट. आप तो भाई फाइनेंस वाले बंदे हो. आप समझिए कि जब मैं ये चीज रोज करूंगी, मैं रोज कुछ नया सीख पा रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर मोटिवेशन है कि मुझे 10 पेज बुक के पढ़ने हैं. वो बुक तो मेरे पास कब से पड़ी है ना, मैंने उसको पढ़ना तो अभी शुरू किया ना. तो मुझे किसी के लिए, और सोचिए आप जब एक क्लास में आप 50 बच्चों तक पहुंच सकते हैं तो आज सोशल मीडिया पर उस पर कितने लोगों तक पहुंच सकते हो. True. और मैं आपको एक चीज बोलूंगी, घर की मुर्गी दाल बराबर सबके लिए होती है. उनके भी टीचर्स उनको क्लास में बोलते होंगे, पर वो जब बच्चा मुझे ऑनलाइन सुनेगा शायद उसको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि मुझे भी किसी को ऑनलाइन सुना हुआ ज्यादा इम्पैक्ट किया. So I am going online for that one person who might have the same situation as me. And I'm not sharing my wins, I'm sharing my failures, because failures are just as normal. They are just as raw, just as truthful, just as honest. And we can create an impact. Imagine if that whole community and that space is used not for wishing somebody just happy birthdays and anniversaries and just discussing in general कि भाई तुझे तेरे मील में 1.5 गुना प्रोटीन खाना है. सिर्फ किसी ने वो चीज सुनी, किसी ने सुना कि टाइम पे सोना जरूरी होता है, कि भाई आप 9 से 12 बजे रात को सोओगे तो हर घंटे की नींद 2 घंटे के बराबर होगी, और 12 बजे से 3 बजे तक 1 घंटे, और 3 बजे के बाद सिर्फ आधे घंटे की. उसने सुना तो उसको कुछ तो इम्पैक्ट जाएगा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू यूटिलाइज दैट स्पेस बेटर एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दोस पीपल हु आर स्टक. पता है क्यों? क्योंकि जो स्टक है ना वो ज्यादा स्क्रॉल कर रहा है. मुझे पहुंचना है, उन तक पहुंचना है, और
उनको वो फील कराना है जो मैं फील कर रही हूँ, जो एनर्जी, जो पॉजिटिविटी मेरे अंदर अभी फ्लो हो रही है, मुझे वो मल्टीप्लाई करनी है, मुझे अलाइन करनी है, मुझे मेरी कम्युनिटी बनानी है इस तरीके की, जो मुझे सिखाए और जिनको मैं सिखाऊं। क्योंकि मैं वहां पे ये भी शेयर कर रही हूँ कि मुझे भागने में 1 घंटा लग गया, भाई मेरे को नहीं भागना आता, तो वहां कोई मुझे भी बता रहा है कि भाई उसके साथ भी ऐसा हुआ था और आज वो कहाँ है। तो मैं उनसे सीख रही हूँ, मुझसे सीख रहे हैं, दैट इज द काइंड ऑफ कम्युनिटी दैट सोशल मीडिया कैन क्रिएट फॉर यू. सो इफ योर पॉइंट ऑफ व्यू इज being the superior being and asking people to follow you and do that or make money out of it, तो आपको गिल्ट आता है कि मेरे से कौन कोई प्रोडक्ट बिकवाएगा, मैं होता कौन हूं, मेरी कोई क्यों सुनेगा. पर जब आपका वो पर्पस ही नहीं है, आपका तो नेक, आपकी नियत इतनी नेक है, तो आप नियति की चिंता क्यों करोगे ना, फिर वो वाली बात हो जाती है. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड फेसिंग सोशल मीडिया. और अब मुझे ऐसा लगता है, मुझे डीएम भी यही आते हैं कि ऐसा लग रहा है आप मुझसे बात कर रही हो, क्योंकि मैं कर रही हूँ तुझसे बात, आज भी मैं तुमसे बात कर रही हूँ. आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू एंड आई एम pouring out what's honest and raw because that's the real me and that's what we want more. हमको ग्लोरीफाइड नहीं चाहिए, हम इंटिमिडेट होते हैं उससे जो ग्लोरीफाइड है. मुझे देखो बहुत रिस्पेक्ट है उस इंसान के लिए जो 50 पुशअप मार सकता है, पर ऑनेस्टली मैं आज नहीं मार सकती. तो मुझे वो भी तो देखना है ना, किसकी एक पुशअप वाली जर्नी कैसी रही. आज अगर मैं वो चीज शेयर करूंगी तो किसी को हिम्मत होगी कि अच्छा चालू ऐसे होता है, फिर पहुंचता वहां पे. तो मुझे वहां पहुंच के किसी को नहीं बुलाना, आ जाओ बेटा दरिया खाई सब पास हो जाएगा. मुझे साथ में हाथ पकड़ के लेके जाना है. That is what I- मतलब आगे बढ़ता हूँ मैं. इट इज टू ओवरवेलमिंग बिकॉज एट टाइम्स वी जज आवरसेल्फ सो मच. आई तो पर्सनली, मैं तो वो एज जाकिर खान सेज कि घर से बाहर निकलोगे 4 लोग क्या कहोगे, तो चौथा तो मैं खुद के लिए हूँ. हाँ सही है. राइट. True. भाई मैं खुद ही को जज करता हूँ. हाँ. Right, and even with this podcast or this Avasar journey, it is not a single day goes by where I'm not judging myself, questioning myself कि यार ये decision लिया सही था, अरे ये किया सही था, अरे ये ऐसे बोला चलेगा. But since I started going through your journey for this podcast, right, मेरे को 2 दिन, अपनी बात शायद फ्राइडे या सैटरडे को ही थी. राइट. उसके बाद मैंने 2 दिन आपका कंटेंट देखा एंड आई, बिकॉज आई नो यू फ्रॉम लॉन्ग बैक, राइट. तो आई जस्ट रीप्लेड एवरीथिंग, राइट. आई रीप्लेड एवरीथिंग एंड नाउ आई नो व्हाट अ डिफरेंस यू आर. अभी तक अपना इतना मिलना नहीं हो रहा था तो मुझे वो डिफरेंस दिख नहीं रहा था, बट सिंस देन आई रियलाइज्ड कि यार इट्स ओके. You can say whatever you are feeling, and you should need to be a true person to yourself, right? You do not have to say something to impress anyone online. You don't have to say anything to be a better person than you actually are. True, correct, absolutely. आपको भारी 4 शब्द नहीं बोलने हैं, आपको ये बोलना है कि आप कौन हो. एंड बस जब आप सच बोलोगे और सच इंटेंशन से कोई चीज करोगे, तो जब आप खुद ही को गलत नहीं लग रहे हो, तो फिर वो 4 लोग क्या कहेंगे ना, वो आपके दिमाग से ऐसे गायब होगा और वो 4 लोग भी गायब हो जाएंगे. आपको दिखेंगे ही नहीं 4 लोग, क्योंकि आप उन वो 4 लोगों के लिए कर ही नहीं रहे हो. आप किस पर्पस से कर रहे हो, आपका पर्पस कितना नेक है कि आप बच्चों को स्किल डेवलप करवा के देना चाहते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यार डिग्री से ज्यादा वो स्किल काम आएगी उसको. क्योंकि आज हम डिग्री लेकर बैठे हैं, बट अब हम वो स्किल्स पर ही फोकस कर रहे हैं ना, हम भी तो वो स्किल्स की तरफ ही जा रहे हैं ना. तो आई थिंक जब आपका पर्पस जरूरी और सही होता है, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या बोलेंगे आपसे. प्लस यू आर योर ओनली कॉम्पिटिशन. दैट इज समथिंग दैट आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन नाउ. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ नॉन कंपैरिजन एंड नॉन एनवी, क्योंकि आपका पर्पस दूसरे से बहुत अलग होना चाहिए. हर्ड मेंटालिटी में मत जाओ. किसी ने कह दिया मुझे बंगला बनाना है, तो तुझे क्यों बनाना है? तुझे तो कभी बंगले का शौक भी नहीं था. तुझे शौक आया क्यों? क्योंकि तूने किसी और को बोलते हुए सुना. सो जस्ट डिसाइड योर ओन जर्नी, थिंक अबाउट दैट, वर्क टुवर्ड्स इट. आपको बहुत अच्छा फील होगा. आप दूसरों की चिंता छोड़ दीजिए, कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, वो भी किसी तीसरे से कंपेयर करके रो ही रहा है. तुझे उसकी थाली में ज्यादा घी दिख रहा है, पर तेरी थाली में जितना घी है वो देख के कोई और रो रहा है. तो अपनी ही थाली में झांको, अपनी ही रोटी खाओ. झांको ही मत. और अगर झांकना है कभी किसी की थाली में, तो वो इसलिए झांकना है देखने के लिए कहीं उसके पास कम तो नहीं है, मैं दे दूं मेरा. कभी इसलिए तो बिल्कुल ही नहीं झांकना है कि भाई वो लेके मैंने मेरी थाली में भर लिया. मुझे नहीं देखना है. मुझे मिलेगा, मेरी किस्मत का मिलेगा, और मैं मेरे तरीके से रहूंगी.
तो it's very natural to feel envy, especially on places like LinkedIn. I have discussed about it कि आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि मेरे क्लासमेट्स, जैसे मुझे बहुत फील होता था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड कॉर्पोरेट में थी, तो जब मैं मुंबई जाती थी मैं उससे कहती थी कि मुझे यार फोमो महसूस होता है कि तेरे कॉर्पोरेट में दूसरे फ्रेंड्स बन रहे हैं, और उसके फ्रेंड्स हमेशा से ना बड़े एम्बिशियस या तो थे या बातें करते थे कि मुझे ये एग्जाम देनी है, मुझे वो देनी है, एंड एवरीवन अराउंड मी वुड कॉर्पोरेट लैडर क्लाइंब करना, तो आपको पता ही है कैसे होता है, प्रमोशंस मिलना और ये सब, और हमारी जिंदगी में ये शब्द ही नहीं है। हमारी लाइफ बड़ी सिंपल सी, बड़े सिंपल शब्दों के आजू बाजू घूमती है। तो कहीं खुद के मन में ये ना आने लग जाए कि यार मैंने गलत तो फैसला नहीं ले लिया, मेरी इतनी सिंपल क्यों है, दूसरे क्यों इतना आगे बढ़ रहे हैं, क्या है आगे ग्रोथ की क्या अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और वो सारी बातें कितनी बार आपको इम्पैक्ट करती है ये चीजें। बट हमको उस रेस में भागना ही नहीं है जो रेस हमारी है ही नहीं। मैं क्यों किसी और से कंपेयर करके खुद को परेशान करूं, मुझे मेरी जर्नी चालू रखनी है, मुझे क्या चीजों से खुशी मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट्स जस्ट बिकॉज आई एम शेयरिंग, किसी का आइडिया है मुंबई रहने का बिकॉज दे लव टू पार्टी, तो मैं क्यों एनवी फील करूं व्हेन माय आइडिया ऑफ फन इज नॉट इवन अ पार्टी। I may not be a party person, I may be a pajama party or a sit down talk person, तो मुझे क्यों किसी ऐसे इंसान से कंपेयर करना है। और आपको बहुत ग्राउंडिंग फील होगा जब आप ऐसे लोगों से भी बात करोगे जिन्होंने अपने कॉर्पोरेट जॉब्स छोड़े और गांव में जाके घर बना के और एग्रीकल्चर करके और साफ हवा में साफ पानी में सिंपलर टाइम्स की तरह लाइफ स्टार्ट करी है, क्योंकि उनको उनका पर्पस मिल गया, उनको पता है कि उनको नहीं दौड़ना है। मैंने किसी की तो भी ये रील में सुना था कि उसने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी और ऑटो चलाना शुरू कर दिया, और वो उसमें बहुत खुश है क्योंकि उसको रोज लोगों से बात करने मिलता है, और वो किसी रेस में नहीं दौड़ रहा, वो जिंदगी में सुबह उठ के परेशान नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, वो किसी पता नहीं, मतलब वही है कि सबका अपना अपना पर्पस होता है, और आप किस चीज में अच्छे हो किस में नहीं हो, आपको क्यों कंपेयर करना है। तो जस्ट समराइज, आप अपना रेस कोर्स डिसाइड कर लो, यस, राइट। दूसरे कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, इज नन ऑफ योर कंसर्न, एंड it will not land you in a good place if you do that. I think that is the only fact that creates misery in a person's life, professionally at least, and I think even personally, कि वो कपल कैसे रह रहा है, उसके पास कितने पैसे हैं, या उसके पास उसके बच्चे कैसे हैं, राइट, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उसका घर कैसा है। I think whenever life becomes a comparative analysis, right, you lose what life is in reality. Whatever you have is also zero. Is zero. True. राइट, तो आप अपनी एब्सोल्यूट रियलिटी में कहाँ खुद को देखते हो। आई थिंक दैट इज व्हाट आई कुड टेक फ्रॉम व्हाटएवर यू सेड राइट नाउ। एंड ये बहुत मुश्किल होता है पता करना, क्योंकि आप ग्रो ही हो रहे होते हो हर दिन, एंड यू कीप ऑन चेंजिंग। जैसे मैंने बताया 2-2.5 महीने से आज में मेरी रियलिटी इतनी अलग है, तो ये एवर इवॉल्विंग चीज है। पर ये क्लैरिटी आपको कब आएगी, क्योंकि ये है सब कुछ आपके अंदर ही। एक तो आपको और रीड करना पड़ेगा, दूसरा आपको लिखना पड़ेगा। Mental clarity is absolute most important. That comes from movement. When you will move, you will have more thoughts. When you will have more thoughts, it will accumulate and then you will write. Then आप उसको जिक्सॉ को जब सीधा करोगे ना, आपके अंदर ही आपके सारे आंसर्स है। तो फिर हमें दूसरों से मिलकर या सुनकर क्यों वो आंसर्स ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि जब आप बात करते हो तब मैंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, तो वो थॉट्स निकलते हैं आपके मुंह से। सो it comes from within and you have to write down those thoughts. ये मुझे इतनी बेकार और टीडियस बातें लगती थी ना ऑनेस्टली। अगर कोई मुझे 5 महीने पहले बोलता ना एक डायरी लो और लिखो, मैंने कहा हाँ बस यही काम बचा है जिंदगी में कि मैं ये करूं। बट मैन, इट क्रिएट्स ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड। मैं क्या बताऊं, मतलब ये भारी शब्द जो लगते हैं ना, कभी मैनिफेस्ट वर्ड सुन लिया, कभी विजन, कभी मिशन, कभी मूवमेंट। Problem only is execution, because once you start doing it and once you realize कि इसका क्या impact आ रहा है, impact तुरंत नहीं दिखता, पर मैं कहती हूँ इतना भी दूर नहीं है। आपको 15-20 दिन में, महीने में एक बार का ये तो पता चल जाएगा कि you're doing something right, something is working for you. For some people the period may be bigger. I'll tell you why certain people are not able to even clear जब हम बात करते हैं उन चीजों की, क्योंकि इनके भी स्टेप्स और प्रोसेसेस होते हैं, और सब में विश्वास रखना और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है।
और हमने डिस्कस किया कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कोई विश्वास करता ही नहीं है, तो सबको लगता है बस ये तेरा अलग है, मेरा तो ऐसा ही है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई फेल्ट लाइक आई एम अ नाइट पर्सन। तो लोग बोलते होंगे कि सुबह अच्छा काम होता है, पर ये बकवास बात है, दुनिया के लिए होगा, किसी को मेरी बॉडी का थोड़ी पता है, मैं तो अलग हूं ना। तो वही वाली बातें होती है जो धीरे धीरे जब आप इस पाथ में वेंचर इन करते हो तो आपको पता चलता है अच्छा नहीं, सब सही बोलते हैं, उनकी सुननी चाहिए। Okay. And take away. ठीक है. Okay. So we talked about a lot of things, Hmm. professional journeys, society stereotypes, या फिर how habits change या कुछ भी होता है, but I am not still able to understand कि what was that turning point जहाँ पे you changed your entire outlook towards life. जैसे एक रील में भी मैंने देखा था आपकी that you said you never taught a practical subject in your entire True. teaching life, True. right? After मतलब even after clearing chartered accountancy जिसमें practical subjects होते हैं, you still do not teach practical subjects, right? तो एक मतलब वही है कि भाई क्या चेंज होता है या क्या पर्सपेक्टिव में चेंज आया, कब आया, क्या आया? आई थिंक इतना एक ऑनगोइंग जोक है जो मेरा और मेरे बच्चों के बीच में चलता है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ भाई किसी को नहीं आ रही ना कैलकुलेशन, मैथ नहीं आ रही ना, आई हैव द सिंपैथी, क्योंकि मैं हमेशा से इस चीज के बारे में एक जोक करते रहती हूँ कि मेरे को मैथ नहीं आती है ना, कैलकुलेशंस आर नॉट माय कप ऑफ टी, और मे बी फाइनेंशियली मुझे इतना ये नहीं वो नहीं। तो मुझे मेरा कंफर्ट जोन लगता था थियोरी, और मेरी हमेशा से माइंडसेट थी कि मुझे मैथ तो आता ही नहीं है, मैथ इज नॉट फॉर मी, साइंस फील्ड इज फॉर मेन। आई से दिस आउट लाउड के क्योंकि सबने ही देखा है कि ज्यादा लड़के इन चीजों में घुसते हैं, या फिर अरे भाई इलेक्शंस में, वोटिंग में, सब जगह जहाँ पे ये होता क्यों है? क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा कि 2 प्रकार के माइंडसेट होते हैं लोगों के, एक को बोलते हैं फिक्स्ड माइंडसेट और एक को बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। एक सिंपल मैं आपसे जैसे पूछ लूं कि ये यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा ये एक थ्रेड वर्क आर्ट किया हुआ है, आर्ट पीस, और पीछे मंडाला आर्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो People will see that. या तो आप ये कितना अगर मैं आपको कहूं कि ये आपने खुद बनाया कि किसी से बनवाया? किसी से बनवाया। क्यों? आप अपने आर्ट के स्किल्स को एक काम करो, मुझे रेट करके बताओ कि आप आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 रेट के आप ड्राइंग वगैरह में कैसे? 0. एंड आई थिंक ये भी एक ऑनगोइंग नैरेटिव है कि आर्ट क्राफ्ट ये लड़कियों की चीज है ना। एंड hear me out completely, I'm not making gender based comments, I'm just saying that there are a few stereotypes and there are a few mindsets that are very prevalent out there. और अगर हमें लगता है ना कि कोई लड़का ये चीज कर लेता है तो फिर लोग कहीं ना कहीं उसका, आई नो लोग बहुत पॉजिटिव हुए इन चीजों को लेकर, और ये बहुत ही पर्सनल एरिया बेस्ड और वैसे पर्सपेक्टिव्स है, बट स्टिल इन पॉकेट्स ऑफ इंडिया यू विल फाइंड पीपल मेकिंग फन ऑफ समबडी फॉर देयर आर्ट, है ना। अभी भी ऐसे वो रॉकी रानी जैसी मूवीज बनती है जहां पर क्लासिकल डांस आर्टिस्ट में आदमियों का मजाक उड़ाया जाता है और औरतों का नहीं उड़ाया जाता है। तो इस तरीके की सोच वाले लोगों को कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं कि भाई ये ऐसी चीज है जो आपको करने का मौका मिले, आप सीखो, आप करो, तो लॉट ऑफ पीपल फील लाइक ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो मुझे हो ही नहीं सकता। लाइक फ्रॉम 0 to age 30 आई हैव नेवर प्लेड मोर फिजिकल स्पोर्ट्स, क्योंकि मैं तो बचपन से पढ़ाई रही थी ना, तो मेरे बचपन में बचपन ही नहीं था, तो मैंने कभी इतना खेला कूदा ही नहीं, है ना। तो मेरे लाइफ से वो स्पोर्ट्स वाला एलिमेंट इतना गायब था कि अभी भी अगर किसी से मुझे बात करनी होती कि मैं खेलने जा रही हूँ कुछ भी, तो मैं पहले डिस्क्लेमर देती हूँ, देखो मुझे नहीं आता है खेलना, तुम फिर देख लेना। इसको कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे आता ही नहीं है तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। एक छोटा सा मैं आपको ये एक एग्जांपल दिखाती हूँ जिससे आप मतलब मेरी आंखें खुली, तो मैं चाहती हूँ सबकी खुले। I want you guys to focus on the left diagram and the right diagram when you see this on your screen. And I want to tell you something very important. These are paintings on the left side created by people जिनको आर्ट नहीं आता था, and on the right side by the same people within a span of 5 days. And these are the people that thought कि इनके लिए आर्ट करना पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इनका स्किल सेट 0 है। ग्रोथ माइंडसेट ये कहता है कि आप किसी भी चीज में आज 0 होना, आप कल बेटर हो सकते हो, एंड ये किसी भी चीज में संभव है। स्पोर्ट्स, स्किल्स, कम्युनिकेशन, डिग्री,
मतलब सिंगिंग इवन, जो हमें लगता है कि नेचुरल गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, नेचुरल कुछ नहीं है इंसान के अलावा, बाकी सब आर्टिफिशियली है और आप क्रिएट कर ही सकते हो। सो ये चीज ऐसा होता है ना कि आप नेचुरली वही प्रेफर करोगे जो आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ स्किल है। तो फॉर इयर्स आई हैव नेवर थॉट ऑफ टेकिंग एनी प्रैक्टिकल एंड आई स्टिल टू डेट बिलीव्ड कि भाई ये तो मेरे स्किल सेट का पार्ट ही नहीं है ना, बट आई कैन ऑलवेज मेक इट माई स्किल सेट। आई हैव नाउ स्टार्टेड बिलीविंग इट, सो मे बी आई वर्क टुवर्ड्स इट एंड इन अ फ्यू इयर्स क्या पता मैं कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लूं। बट ये थॉट प्रोसेस चेंज करने की बात है। जैसे सेम वही चीज थी कि मुझे ऐसा हमेशा से लगा है कि मैं कभी भाग ही नहीं सकती। रनिंग इज समथिंग दैट आई रन अवे फ्रॉम, राइट? तो मुझे ऐसा था कि मुझे मुझे भागना ही नहीं, मुझे आता ही नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकती, ये दूसरे पैदा हुए इस चीज के साथ, राइट? तो उस माइंडसेट को हराना होता है और ये एक बहुत छोटे स्केल पे जब आप हरा देते हो ना, बस वही ब्लॉकेज था, वो निकल गया ना, आप कुछ भी, आप कोडिंग सीख सकते हो। थिंक ऑफ द थिंग दैट यू आर वर्स्ट एट, कुकिंग और मे बी, मतलब जो जो चीज आपको ऐसे लगती है ना कि आपकी नेगेटिव में स्किल्स है, जो आप उसके बारे में सोचो, जो जिस चीज से ऐसे मरोड़े उठ जाते हैं कि ये मेरी लायक की चीज नहीं है, मैं नहीं कर सकती। से फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर डन मेकअप? You feel like it's not your skill set, but you can even learn that. कोई भी स्किल सेट है ना, अभी आज मुझे क्रिकेट नहीं आता पर मैं सीख सकती हूँ। आई जस्ट नीड अ राइट कोच, अ राइट पर्सन, अ राइट मेंटर, एंड दैट मेंटर शुड ऑल्सो हैव अ ग्रोथ माइंडसेट कि वो मुझे सिखा सकते हैं, आई शुड हैव अ ग्रोथ माइंडसेट कि मैं सीख सकती हूँ। कुछ भी पॉसिबल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ग्रोथ माइंडसेट की जो आती है, जब आपको ये आ जाती है ना, तो आपको ये पता है कि एवरी डे जब आप वो चीज करोगे, यू विल keep getting better at it. And these people that are motivated with high energy, they are random people like me. These people that are successful, ultra successful, कैसा होता है, लोगों को लगता है इसको तो अब बातें आ रही है ना, इसके पास तो बहुत पैसा है, तो ये तो एनर्जी में ये चीज बोलेगा ही, वो बोलेगा ही। भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये सक्सेसफुल है, वो तुम्हें ये फीलिंग आ रही है कि वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो सक्सेसफुल है, नहीं, वो बस उसकी एनर्जी पॉजिटिव है। तुम्हें उससे इंटिमिडेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कहीं पहुंच गया। तो पर आज मैं बोल रही हूं तो नॉर्मल लगना चाहिए ना, बिकॉज ये चीजें रियल है, ऐसे होता है। आप विश्वास करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। और ये ट्रांसफॉर्मेशंस किसी के स्लो होते हैं, किसी के फास्ट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका बिलीफ कितना है। और ना हर इंसान थोड़ा ग्रोथ माइंडसेट और थोड़ा फिक्स माइंडसेट वाला होता है। मैं जिस चीज को लेकर मेरी ग्रोथ माइंडसेट हाई होगी ना, वहां पे मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस कर पाऊंगी, और जिस चीज को लेकर मेरी ग्रोथ माइंडसेट स्लो होगी ना, मैं खुद को भले कितनी बार बोल लूं, उससे नहीं होता, विश्वास करने से होता है। तब आप कुछ भी अचीव कर पाओगे। Now, I can connect to this with your another post, जो मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी हद बकवास है, that is manifestation. Right? Welcome to the gang who hates manifestation. You won't believe, I have a very dear close friend who is a chartered accountant, and she talks about this day in, day out. Right? She's crazy. It started with, who wrote the book The Secret? Rhonda Byrne. Right? It started with her, The Secret. And then there was a couple who internationally supported this a lot. I read The Secret and I found it to be utter nonsense. Yeah, true. राइट? उसके बाद आज तक, मतलब इवन गरिमा मैम आके बोलती है मैनिफेस्टेशन के बारे में, आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड माय माइंड। एंड क्योंकि कितना शेयर बकवास है ना, आप साइंटिफिक बंदे हो, आप प्रैक्टिकल बंदे हो, आपको बिना एविडेंस के ऐसी एनर्जी लेवल की बकवास कैसे लग सकती है? सी, एनर्जी लेवल आई कैन कॉम्प्रिहेंड, चलो स्टिल बिकॉज़ इट हैज साइंटिफिक बैकग्राउंड, बट मैनिफेस्टेशन हैज नो साइंटिफिक बैकग्राउंड। अगेन साइंटिफिक, साइंस नॉन साइंस भी नहीं आता इसमें, बस शेयर कॉन्सेप्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि यार, for a very great extent of my life, I believed कि your will is not your will. There is nothing called free will. It is all return. Oh. Right? अभी नहीं, अभी I am not of that part. But that time you thought free will जैसी चीज नहीं है तो क्या है? मतलब जो है, जो होना है वो होना है। अच्छा, it's all destiny based. Destiny based. And that you found okay, but you find this manifestation bullshit. Nice. So again, I came a lot from that कि यार, you can control a lot of things, but still to date manifestation is something that I am not able to comprehend. And how did you comprehend? Because I knew that you were also the part of this gang. And still
अ पार्ट Okay. ऑफ दैट गैंग, ठीक है, वो गैंग कभी नहीं छूटेगी, बिकॉज ये कैसे हो सकता है ना कि आप कोई चीज बस कुछ लिख दो और वो Hmm. हो जाएगा, या आप कुछ सोच लो वो हो जाएगा, तो मैं फिर बैठ जाती हूँ। मैं क्यों काम Exactly, कर्म क्यों exactly. करना है अगर सोचने से ही चीजें हो जाती है तो बड़ी बकवास बात है ये। मैनिफेस्टेशन बड़ा भारी सा शब्द है ये। और कुछ साल पहले की बात है, एंड मैंने आपको बताया दैट आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, ओके, वेरी हम्बल एज इन वेरी हम्बल, ठीक है, उन चीजों में नहीं जाते, बट मुझे ऐसा मालूम है कि मेरे लिए एक असंभव बात है कि मेरे माँ बाप या हम एक घर लेकर उसमें रहें, ठीक है। वो बात अलग है कि आज इंडिया के बाहर भी मेरा एक घर है, लेकिन उस वक्त ये सोच पाना, जब हमारे पास कोई गाड़ी भी नहीं थी, हम ऑटो में घूमते थे और हम रेंट के घर में रहते थे, और हम हर 2 साल 3 साल में घर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम रेंट के घर में रहते हैं, हमारी इनकम कभी सेव ही नहीं हो पाई। ये होता है ना जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से होते हो कि आपका जो कमाया हुआ है वो खर्चे में निकल जाता है। रिच बिकम्स मोर रिच बिकॉज दे हैव मोर टू सेव एंड इन्वेस्ट। आई हैड नो इन्वेस्टिंग इनकम, सो ऑल्दो in 11th, Arvind sir from Niveshai took our economics and he would teach those concepts, and मैंने SIP तभी चालू किया था। एंड आई रिमेंबर हिम टेलिंग मी कि भाई तुम लोग इस उम्र से कर रहे हो, कंपाउंड करते करते कहाँ पहुंच जाएगा एंड ऑल। कहाँ पहुंच जाएगा का पता नहीं, बट आई यूज टू डू SIPs, और मुझे ऑनेस्टली नहीं पता होता था 2,000 3,000 डालूंगी तो उसका भी क्या ही होगा। वो मैं करके भूल जाती थी। और एक दिन एक अपने स्वस्तिक में से सर का फोन आया मेरे पास में कि आप सोचो होगा। मैंने कहा फालतू बात मत करो, सोचो होगा। मेरा बैंक अकाउंट है ना, मुझे पता है ना मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, मुझे पता है ना सेविंग्स मेरी क्या है, मुझे पता है ना, आपको कुछ नहीं पता, आप मत बोलो। वो बात हुई, उन्होंने बस मुझे बड़ा पॉजिटिव किया, विश्वास दिला दिया कि आप सिर्फ सोचो, मेरे कहने से सोच लो। पता नहीं क्यों मैंने उनके कहने से सोच लिया। जयंत, 1 महीने बाद 6 तारीख को एग्जैक्ट उसी डेट पे जिसमें मेरी बात हुई, 1 महीने बाद आई वॉज साइनिंग पेपर्स फॉर माई हाउस। लोन के पेपर्स पे मैं साइन कर रही थी, डाउन पेमेंट मेरा रेडी था, मेरी SIP टूटी, वहां से मेरा पैसा निकला जो मेरे को पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट करता है। माई ब्रदर वेंट एंड सेटल्ड इन अफ्रीका, और जो भी लोन भी हमने लिया, नॉट द बैंक वाला लोन बट जो हमने इनफॉर्मल वे में लिया था, within 4 months we paid everything off and we don't know from where it came. I cannot point blank, मैं डॉट्स मार्क नहीं कर सकती। एंड मैंने मेरे फैमिली मेंबर्स को जब कॉल किया, सबका रिएक्शन था तुम पागल हो क्या, तुम्हारी शादी बाकी है, भाई की शादी बाकी है, तुमको ये सब खर्चे दिख रहे हैं, यू नो हाउ सोसाइटी वर्क्स। एंड वो हो गया। अब इसको आप मैनिफेस्टेशन मत बोलो, ठीक है, आपको जो बोलना है आप बोलो। इसमें क्या होता है पता है, when you start writing your goals every day, somehow you feed this energy to your brain। एंड मैंने फिर इसका एक न्यूरो साइंटिस्ट के पेज पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि आपका कोई प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है रियलिटी और सबकॉन्शियस में। यानी अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज फीड कर रहे हो तो वो समहाउ उसको आपकी रियलिटी समझ लेता है, और उसका साइंस ये है कि आपके एक्शंस उन चीजों के साथ अलाइन होने लगते हैं। इट्स नॉट दैट आप बैठे हो और काम हो रहा है, इट्स दैट आपने सोचा कि आप एक मिलियनेयर हो तो आपकी हरकतें एक मिलियनेयर वाली है। आपने सोचा आप रैंकर हो तो आप 12-14 घंटे लेके किताब बैठने लग गए। आपने सोचा कि आपको वर्ल्ड लेवल का प्लेयर बनना है तो आप उतने घंटे प्रैक्टिस करने लग गए, क्योंकि आपके माइंड से आपकी विल जनरेट होती है, और फ्री विल होती है सर। हाँ अब आप मानते हो ना, तो ये फ्री विल यहां से आती है, ये सोच से आती है जब आप उस चीज को विश्वास करने लगते हो। अब मेरे को पता है कि ये बात सुनकर ना 2-4 लोग मोटिवेट होंगे कि वाह इन्होंने बोला और 6 महीने में इनका घर हो गया, क्योंकि मैं भी मैनिफेस्टेशन के चोले में हल्का सा तभी पड़ती थी जब मैं किसी का सुन लेती थी कि अरे इसने ऐसा बोला और ऐसा हो गया। विश्वास उसी इंसान पे होगा जो एग्जाम्पल दे पाएगा। तो मुझे तो विश्वास है क्योंकि मेरे साथ हो गया। अब आपने मेरा सुना तो आपको हल्का सा विश्वास तो आया, बट अ लॉट ऑफ पीपल विल स्टिल फेल इन दिस। मुझे ऐसा लगता है कि 4 लोग सुनेंगे, 4 लोग इससे मोटिवेट भी हो जाएंगे, बट आप ना जब किसी और के साथ ये हुआ हुआ सुनते हो ना तो आपको पता तो है कि ये चीज वर्क करती है, उसके साथ करी तो मेरे साथ भी करेगी, बट लॉट ऑफ पीपल विल स्टिल फेल। और उसके बारे में मुझे तब पता चला जब मैंने एक और किताब पढ़ी, मतलब जब मैं बहुत छोटी थी ना तब मैंने द सीक्रेट देखी थी, क्योंकि एक समाज का प्रोग्राम हुआ था, उसमें सबको एक कमरे में बिठा के महेश्वरी भवन में दिखाया गया था। तो नहीं होता आपको विश्वास, क्योंकि आपको हमेशा ये लगता है व्हेन
See, problem is the person trying to talk about manifestation is trying to sell you the concept or a book or a podcast or some sort of a course. और जब भी कोई इंसान कोर्स बेच रहा होता है और उसमें वो कोई भी चीज बोलता है तो आपको somehow उसमें मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट मिक्स्ड लगता है. That's why when I talk about it in my community, I have no vested interest in it. तो मैं उसके बारे में बात करते हुए ये इन जनरल बोल सकती हूँ कि आप मोटिवेट हो जाओगे पर आप फिर भी फेल हो जाओगे अपना मैनिफेस्टेशन अचीव करने में. क्योंकि पता है क्या, आपके ब्रेन को आपको बेवकूफ बनाना है. अगर आप उसको बार बार ये बोलते रहोगे ना कि ये मेरी रियलिटी नहीं है, मैं तो सोच रहा हूं कि मैं ऐसा बन जाऊं, तो अब आपके दिमाग में आएगा पर मेरा दोस्त तो जानता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, तो मैं उसके सामने टॉपर वाली हरकत क्यों करूं. तो आप समहाउ अपने आप को उस हायर सेल्फ बनने से खुद ही रोक लोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा मेरे सराउंडिंग्स वाले तो मेरी रियलिटी जानते हैं ना. तो आप खुद को बार बार अपनी करंट रियलिटी हमेशा बताते रहते हो. इसलिए आपको डिल्यूजनल रहना पड़ता है. यू हैव टू बिलीव दैट यू आर समवन इन ऑर्डर टू बिकम समवन. ये डिल्यूजनल रियलिटी होनी चाहिए. प्रॉब्लम क्या है कि मैं खुद को बोल दूं कि अरे मुझे गुजरात का सीएम बनना है, ठीक है ना, तो मुझे बार बार ये लगेगा लेकिन ये बात मैंने घर पे कह दी तो घर पे तो 4 लोग मुझे कहेंगे ना कि तू कैसे बन सकती है यार सीएम, तेरे में तो टैलेंट ही नहीं है वो चीज का, या तुझे कौन चाहता है, तुझे कौन वोट देगा, वो सारी चीजें. ये मुझे कोई नहीं बोल रहा, ये मैं खुद को बोल रही हूँ. तो मैं डिल्यूजनल सेल्फ बिलीफ रखी नहीं, तो मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वर्क कैसे करेगा. हाउ विल आई टेल माई ब्रेन इट हैज टू बी स्टूपिड इनफ, इट हैज टू बी crazy enough to believe that whatever your goals are real. इसीलिए जो मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं ना, वो कहते हैं आप प्रेजेंट टेंस में लिखो. एंड आपको एक आदत पता होगी कि आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, तो आप गलियों में घूमते हो इधर उधर, है ना, तो कितनी बार होता है आप सोचते नहीं हो डायरेक्शन क्या है, तो आप कहाँ पहुंच जाते हो, सही जगह पहुंचते. आप पहुंच जाते हो उन जगहों पे जहां पे आपको ज्यादा पहुंचने की आदत है. जैसे मेरे साथ बहुत बार होता था, मैं J9 पहुंच जाती थी, घर पहुंच जाती थी, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी होती है. जब आप कोई चीज बार बार करते हो आपको आदत हो जाती है वो चीज करने की, वो आपके जहन में बैठ जाता है. So this habit of writing your goals, it's not a stupid habit. First, it will tell your subconscious that these are the things that you have to achieve. Second, it fits itself into your muscle memory. So manifestation is not a magic trick. It's everything based on science. And it changes your actions. And those actions के स्टेप्स होते हैं. तो ये द सीक्रेट पे तो मुझे विश्वास इतना नहीं आया था, मैंने बचपन में भी देखी थी और तब तक मेरे साथ कोई जादू नहीं हुआ था. तो बहुत जरूरी है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो या किसी और की स्टोरी आपको मोटिवेट करे, नोन वन की, जिसपे आपको विश्वास है कि वो झूठ तो नहीं बोलेंगे. अब मेरे बच्चों को पता है कि मैं झूठ तो नहीं बोलती हूँ, तो फिर दे विल बिलीव माई स्टोरी, दे विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट. हमने 31st को बच्चों को बोला था कि आप आज एक बात मानो, पार्टी मत करो, आप विजन बोर्ड्स बनाओ, क्योंकि विजन बोर्ड्स में आप रोज अपनी रियलिटी देखोगे तो वो सच होगा. आई रिसीव मोर देन 50 विजन बोर्ड्स द सेम डे और अ वीक ओवर दैट, कि जहां बच्चों ने लिटरली सोचा इस बारे में, बैठे पिक्चर्स बनाई घर पे, एंड उसकी फोटोज उन्होंने मुझे भेजी है जहां पे किसी ने अपने नाम के आगे सीए लिखा है, किसी ने सक्सेसफुल लिखा है, और वो उन्होंने अपने डेस्क पे लगाया है. ना इमेजिन अ पर्सन जिसके डेस्क पर वो है, इमेजिन अ पर्सन जिसके डेस्क पर वो नहीं है. तो उसकी जो मेहनत करने की क्षमता है उसमें फर्क आएगा, आप विश्वास करके चलिए. सो मैनिफेस्टेशन आपके लिए चीजें कुक नहीं कर देता है, रेसिपी है वो जो हेल्प करता है. जूते पहन लिए इसका ये मतलब नहीं आप भाग ही लोगे, भागना आपको घुटने से पड़ेगा, पैरों से भागना पड़ेगा, बट जूते हेल्प करते हैं. सो मैनिफेस्टेशन इज समथिंग दैट हेल्प्स. वो आपकी प्रोसेस को स्मूदन करेगा और वो आपको विश्वास दिलाएगा कि आपसे हो सकता है. बट ना मैं 7 स्टेप बुक पढ़ रही थी इसकी, ये रॉक्सी नफूसी की मैनिफेस्ट, और मुझे इतना प्यारा वो जो मेथड 7 स्टेप में उन्होंने बताया मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, और बड़ी प्यारी किताब है विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. बट अगेन आपको जिस पे विश्वास होगा होगा, जिस पे नहीं होगा नहीं होगा. तो पढ़ने वाला अपना जितना इनपुट ही लेता है. मैंने बहुत इनपुट उससे इंपॉर्टेंट जो लिया कि आप डरो मत. Once you have decided your goal, don't be afraid of it. मतलब मैंने मेरा गोल लिखा, मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था, शिट यार मैं ये साथ ही नहीं जाता. बस 90% people will fail in manifestation here because you have to believe in it. और आपको वो डर निकालना पड़ेगा, और वो डर निकले इसलिए बहुत लोग अपने गोल्स किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है somebody will shut them down. Their friends will say अरे ये तो बहुत एम्बिशियस हो गया यार, ये बहुत ज्यादा है यार, ये थोड़ी हो सकता है यार, है ना. अगर मैं किसी को कहूंगी अरे यार मेरे को सिंगिंग करना है, थोड़ा पहले करती तो ठीक रहता, अभी तो कहाँ, अब तो इतना ही है. तो
जैसे ही किसी ने बोला मेरे में सेल्फ डाउट का कीड़ा पैदा हो गया, तो दैट इज व्हाई आल्सो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट शेयर। आपको भाड़ में जाए दुनिया, अपने गोल्स लिखने हैं और उन लोगों को एग्जाम्पल बनाओ जो रूट्स से, जीरो से आए हैं और आज हीरो बने हैं। उनका स्ट्रगल देखो, उनकी मैनिफेस्टेशन देखो, उनकी जर्नी देखो, है ना, तो आपको विश्वास होगा कि ये हो सकता है। और बहुत सारी स्किल्स के बिना, बहुत सारी स्किल्स के साथ ये कैसे होता है ना, आपको बस सपना देखना होता है, फिर वो हो ही जाएगा। ठीक है, मैंने नैन्सी त्यागी का वीडियो देखा था कांस पे, और वो मुझे इतना रिलेट किया, इतना मुझे फर्क पड़ा इस बात से कि लोग वहां पर उस फेस्टिवल में पार्ट लेने के लिए फ्रेंच सीख के जाना पड़ता ना, तो भी सीख के जाते हैं क्योंकि उनको मौका मिलता बस इतने बड़े कान फिल्म फेस्टिवल का पार्ट बनने के लिए। और वो लड़की को कोई नहीं पहचानता था, कुछ नहीं, कैसे तैसे उसने मेहनत करके जो वहां पहुंची होगी अपनी स्किल के बेसिस पर, और उसने जाके वहां पे हिंदी में इतना प्यार से बोला, इतना बड़ा तो मेरा सपना भी नहीं था जितना मैं यहाँ पे। ये रियलिटी एक्सेप्ट करना, इस जर्नी को जीना हम जैसे लोगों के साथ ही होता है। पता तब चलता है जब वो इंसान फेमस हो जाता है, बट वो होता तो कितना रैंडम इंसान है ना। राज शमानी आज इतना बड़ा पॉडकास्ट लेकर बैठा है, कभी तो किसी का क्लासमेट था ना। तो वो वाली चीज है कि आप विश्वास करोगे तो बड़ा आपके साथ होगा ही। So, just to change my perspective, what I gathered, right? I don't know how manifestation will work for me, but one thing that I took away from that entire statement of yours is we humans are very self-limiting, We do and limit you can ourselves. use that manifestation tool or the step, or let's not call it manifestation, but you can just break those limitations. जो अपने मन में आ जाता है कि दिस इज नॉट मी, यार मैंने पेज पे लिख दिया दैट आई विल बी टॉकिंग टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया समडे, तो वो भी ऐसे लगने लगता है, कैसे होगा यार इस लाइफ टाइम में तो नहीं हो रहा है, एक और जन्म ले लेते हैं, राइट? सो वी नीड टू जस्ट ब्रेक दैट ये सेल्फ ब्रेक लिमिटिंग। करने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, क्योंकि रिसेंट में जो फियर वाली चीज हुई ना मेरे साथ, कि ये फियर वाली, जब मैं वो चैप्टर पूरा पढ़ रही थी, उसके बाद मेरी एक बहुत फेवरेट क्रिएटर है मासूम मीना वाला, क्योंकि वो बहुत रॉ और रियल है। मतलब वो अपने चैलेंजेस भी बहुत शेयर करती है सोशल मीडिया पे। लोग जहां से भी ये दिखाना चाहते हैं ना कि हमारी लाइफ में सब अच्छा है, वो सारा खराब भी शेयर कर देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा उस पर क्रेडिबिलिटी और विश्वास है। तो उसके पॉडकास्ट पर एक गायत्री करके कोच है जो मैनिफेस्ट का वो बोलने आए थे, तो मैंने पूरा पॉडकास्ट अभी तक नहीं देख पाई हूँ, आई विल सी इट इन माय टाइम, बट उसका एक छोटा सा रील और क्लिप मैंने देखा था जिससे मेरा टेक अवे मैं शेयर करती हूँ। तो ना ब्यूटीफुल टेक अवे है ना वो। मतलब आप ये समझो कि आप और आपके बिजनेस पार्टनर ने मिलकर ये आपका ऑफिस स्टार्ट किया, ठीक है। टेल मी, क्या सारा काम आप करते हैं या आप दोनों के बीच में आप लोग का काम बटा हुआ है? बटा हुआ है, राइट। सो उसमें इतना प्यारे तरीके से उसने ये चीज बताया ना कि आपको अपने गोल्स लिखने हैं। द वॉट इज योर रोल, बट आप अकेले नहीं हो, आप पार्टनरशिप में हो। अब आपका पार्टनर जो है ना, उसका गोल है द व्हेन एंड द हाउ, आपका गोल है व्हाट एंड व्हाई, है ना। तो आप सिर्फ अपनी किताब में ये लिखें कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, है ना, कितना चाहिए, सब कुछ आप लिखो। अब आपके पार्टनर का काम है हाउ एंड व्हेन, कब होगा, कैसे होगा। और आपका पार्टनर कौन है यहाँ पे? यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स में छोड़ देना है ये बताकर व्हाट डू यू वांट, एंड यू लीव द हाउ एंड द व्हेन टू इट। मैंने यूनिवर्स को बता के छोड़ दिया कि मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना है, मुझे काइंडनेस फैलानी है, मुझे इम्पैक्ट करना है, मुझे लोगों तक पहुंचना है, मुझे मदद करनी है। सोशल मीडिया के थ्रू होगा, ये पॉडकास्ट के थ्रू होगा, ये मैंने नहीं प्लान किया। द हाउ एंड द वाई, मतलब द वाई एंड द what is my part, but my partner is very effective, the universe is picking up the signals ना। मैंने what बहुत क्लियर बताया उसको, मैंने बहुत क्लियर बताया उसको मुझे क्या चाहिए, तो वो हाउ और वो व्हेन अपने आप बहुत अच्छे से कर रहा है। मेरा पार्टनर पे मुझे संदेह नहीं करना, क्योंकि अगर मैं उसको बार बार गोची करूंगी ना, कब अब होगा कब होगा, वो परेशान हो जाएगा मुझसे। तो आपको नहीं सोचना है कि आप प्राइम मिनिस्टर से बात कैसे करोगे या बन जाओगे कैसे। गोल कितना भी बड़ा हो सकता है ना। आपको बस उसकी तरफ काम करना है और आपको नहीं सवाल उठाने हैं उसके ऊपर कि ये कैसे होएगा। तो ये इतना ब्यूटीफुल पार्ट था ना, ये मेरा पूरा फियर जो उस चैप्टर के कारण पैदा भी हुआ था, या मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस पे जो मेरा अविश्वास जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो खत्म हो गया इस चीज के बाद। खत्म, मैं कम भी नहीं बोलूंगी, खत्म हो गया। मेरे हाथ में नहीं है हाउ, मैं क्यों चिंता करूं। मैं लिखूंगी सबसे बड़ा गोल,
मैं लिखूंगी और वो होगा ही. मतलब too overwhelmed right now because the final concept जो आपने बोला ना, I'll tell you something. I have been struggling recently with a lot of things Okay. in my personal life and professional life. Yes. ठीक है? Because to build a business, to build something is hard, gut wrenching, heart wrenching, कुछ भी बोल लो. Overwhelming. मतलब it takes every ounce Stomach of toiling. True. physical, emotional, and mental effort to build something. Right, but the last thing जो आपने मुझे बोली ना, तो I just went into my entire past and just observed कि मेरे साथ कब मैंने क्या सोचा था और वो हो गया. हर किसी के साथ होता है, मुझे रियलाइज हुआ, बहुत छोटे छोटे लेवल पे होता है, हम ऑब्जर्व नहीं करते. True. When you were saying, I just sat and observed कि यार जेके ये सोचा था तूने, ये हो गया, ये सोचा था ये हो गया. हाँ. एंड मोर ओवर मेरे लिए वो तब हुआ है जब मैंने किसी और के लिए किया है. हाँ. True. And I think that was what made me a teacher. Yeah. Right, when I was here, I was wanted to change or impact or create a little bit difference of 1% in someone's life, and it happened. And I'm telling Right. you, the more you live for other people, the more universe will reward you in return. तो ये है ही नहीं. आप दूसरे के लिए करोगे ना, तो आप पीछे रह ही नहीं जा सकते. आप किसी के लिए 100 करो तो आपके लिए 150-200 का अरेंजमेंट कैसे होगा ना, आपको पता भी नहीं है. बस आपकी देने की भावना होनी चाहिए. Correct. जिसकी देने की भावना होती है उसको देने के लिए ऊपर वाला बहुत बैठा है और वो दे देगा पीछे से कैसे भी. सो इट विल वर्क आउट, एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर यू इफ योर इंटेंशंस आर प्योर. एंड आई थिंक आपका तो लोगो और इनिशिएटिव ही यही है. तो फिर चलिए, I think many I think- congratulations to you Thank on you, your thank you, startup, and thank you so much. I Thank you absolutely loved being here, and thank you for and being this here. felt very real. Zero part of it felt manufactured for me, और वही मेरी एक मेन क्राइटेरिया होती है, क्योंकि हम दोनों के लिए एक स्ट्रगल है ऑनलाइन जाना या सोशल मीडिया पे कोई चीज डालना. तो जितना ये रॉ और रियल होगा उतना हम दोनों के लिए इजी होगा. And I hope if this impacts even one soul, our job here is done. I think it impacted me. वो one soul का कोटा आपका हो गया. Okay. Thank you so much for being here. Thank you.